जय हिंद बच्चों, आपकी नई फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में टीएस सर ने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी थी फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सर ने आपको पढ़ाई थी। मैं उसका एक क्विक रिवीजन लेकर आपके लिए लाया हूँ और इस क्विक रिवीजन को करने के बाद हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। So let us have the first of all the quick revision of the things that you have studied in your previous class. You have in your previous class studied about the charge. First of all, what is charge? It's the fundamental property of matter due to which electrical effects is produced in the matter. यानी कि ये चार्ज की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मैटर में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स हैं ये चार्ज के कारण ही होते हैं। कितने टाइप के चार्ज होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. We have studied that. Then we have studied the properties of charge: additivity, conservation, quantization and invariance. Additivity matlab the net charge on any object is the sum of the algebraic sum of the charges on each part. That means q is equal to q1 plus q2 plus q3. We have learnt about that. Conservation का मतलब charge can neither be created nor it can be destroyed. It can only be transferred from one body to another body. इसका मतलब कोई बॉडी में अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है दैट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी में नेगेटिव चार्ज आ रहा है दैट इज ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो कंजर्वेशन. द थर्ड इज क्वांटाइजेशन. चार्ज इज अ होल नंबर इंटीग्रल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज ई. दैट मीन्स ये कोई फ्रैक्शंस में नहीं मिलेगा, फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल्स के फॉर्म में मिलेगा, जिसको हमने इक्वेशन में पढ़ा था q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड एंड e is the charge on an electron or proton. On an electron the charge is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, while on a proton is plus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So the charge on any object is q is equal to plus minus ne, where n is the number of electrons it has lost or gained and e is the charge on that electron. ठीक. So if someone loses electrons it will acquire a positive charge, if some other object gains electrons it will acquire a negative charge. ठीक है. सो क्वांटाइजेशन इन दैट वी हैव स्टडीड दिस. माइंड यू, एक चीज आपने पढ़ी थी यहां पर क्वार्क्स के बारे में. क्वार्क्स जिस पर फ्रैक्शनल चार्ज होता है, तो whenever there is a encounter of quarks we say that the charge is not quantized in the form of E. ठीक है, it consists of fractional charges. ठीक. उसके बाद इनवेरियंस, जिसमें हमने ये सीखा था कि if the charge moves with any speed its charge do not change. For example, if an electron is moving with a slow speed, then also its charge is E. If it is moving at a very high speed, then also its charge is E. And if it is at rest, then also its charge is E. So the charge do not depend on the speed. That is called invariance of charge. Apart from that, we have also studied the methods of charging: charging by friction, charging by induction, charging by physical contact. That also we studied in the previous class. And after that, we have studied Coulomb's law. And in Coulomb's law, we studied the force between the two charges. Force between the two charges in space is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, which shows that the force between the charges is depending upon three things. The first thing is the product of the charge. The second is inversely proportional to the square of the distance. And the third is the permittivity of the medium. Right? So if the medium changes, the force also changes. If the force between the charges in space is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, the force between the charges in the medium will be 1 upon 4 pi epsilon naught k q1 q2 upon r square, where k is the dielectric constant or the relative permittivity of the medium. ठीक है. सो वी हैव कंक्लूडेड एफ इन मीडियम इज इक्वल टू एफ इन स्पेस अपॉन के. मतलब चार्जेस को अगर हम स्पेस की तुलना में किसी मीडियम में रख देंगे, उतने ही चार्ज को उतने ही डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रख देंगे, तो उसमें मीडियम के अंदर फोर्स कम हो जाएगा. कितने टाइम्स कम हो जाएगा? के टाइम्स, पर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो एफ इन मीडियम इज इक्वल टू एफ इन स्पेस अपॉन के. ठीक है, that we have studied in the previous class. And also from that we have studied F12 is equal to minus F21, यानी forces are equal and opposite. ठीक है, ये भी हमने यहां पर हमने हमारी लास्ट क्लास को लीव किया था सर ने. ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. लेट अस अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक.
कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, लेट अस अंडरस्टैंड, दो चार्जेस हैं, पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, दोनों मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज R। ठीक, both these charges are positive. Let us assume both these charges are positive. If the both charges are positive, they will repel each other. If they repel each other, they will be exerting force on each other. ठीक है, let this force is F and this force is also F, but the forces are not the same. At least their directions are different. So we should have different notations for both of them. What notation we should have so that we don't get confused? Let us take the notation that we have is FOD. दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं या जो भी फोर्स है उसको हम आज से किस नोटेशन के यूज करके शो करेंगे? FOD। इसमें O का मतलब होता है ऑन एंड D का मतलब होता है ड्यू टू। ठीक है, FOD मतलब फोर्स ऑन एंड ड्यू टू। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मैं लिख रहा हूं F12, तो F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, सिंपली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो F21 का मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, सो दिस इज द नोटेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज, FOD नोटेशन, फोर्सेस को शो करने के लिए। अब इसका यूज करके जस्ट लेट अस अंडरस्टैंड, Q1 पर लगने वाला फोर्स Q2 के कारण इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका नोटेशन क्या रहेगा? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, दैट इज F12। ठीक है, and what should be this force? This should be F21. Since these are the vectors, let us give the vector sign to them. ठीक है, अब since we have to express it in vector form, हम F12 के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, that is R∩21, और F12 की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, that is R∩12। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं ये तो आपको पहले से ही मालूम है। यूनिट वेक्टर जैसे A कैप कैसे मिलता है? A वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। यूनिट वेक्टर की खासियत होती है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन कुछ भी हो, सेम एज गिवन वेक्टर, पर मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ओके, तो क्या इस फॉर्मूले से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर का मॉड इंटू A कैप? क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है? यानी कि गिवन वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर इस फॉर्मूले को यहां पर यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, सो आपका रिवीजन हुआ, वी विल बी यूजिंग दीज फॉर्मूलाए। So we have understood what is F12, force on 1 due to 2. ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ के हिसाब से what will be F12 vector? F12 vector should be what? It should be equal to, according to Coulomb's law, 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon what is the distance? That's R. तो R का square. So this is the magnitude. ठीक है, but we have to get the direction because we are expressing it in vector form. So what is the direction of F12? It is along R∩12. This is the magnitude and this is the direction. Now it becomes F vector 12. अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये स्केलर फॉर्मूला होगा, ये हटा देना पड़ेगा। This is the scalar formula, not the vector formula. If you want to write it in vector form, then you have to show the direction also. ठीक है, तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन शो करने के लिए क्या लगा देंगे? R∩12। अब ये वेक्टर फॉर्म हो गया। दिस इज हाउ वी राइट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली व्हाट विल बी F वेक्टर 21? अभी भी वो कैसा रहेगा? 1/4 pi epsilon naught, दोनों चार्ज Q1 और Q2 तो उनका प्रोडक्ट Q1 Q2, डिस्टेंस अभी भी वही है R, इसका स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड।
लेकिन इस वेक्टर को शो करने के लिए F21 को शो करने के लिए व्हाट इज द डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर. व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन? दैट्स r cap 21. So we are going to write r cap 21. This is equation number 2. ठीक है. But do we know this? r cap 12 is equal to minus of r cap 21. ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं. यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है, राइट? तो r cap 21 का मैग्नीट्यूड भी 1, r cap 12 का मैग्नीट्यूड भी 1. So the magnitudes are equal. But what is this minus sign here? The minus sign is showing that their directions are opposite. ठीक है. तो r cap 12 is equal to r cap 21. इसका मतलब both the unit vectors are equal in magnitude. Both have magnitude 1, but the direction is opposite. Minus sign. Question number 3. Now अगर हम 3 का यूज करें, r cap 12 यहाँ पर है. r cap 12 की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस ऑफ r cap 21. तो 3 का यूज करके इक्वेशन नंबर 1 को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? यूजिंग 3, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? f वेक्टर 12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. ये तो पहले से ही था, ठीक है. r cap 12 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? माइनस r cap 21. तो ये हो गया r cap 21 और ये हो गया माइनस साइन, राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक. अब अगर हम 4 को कंपेयर करें, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r cap 21. ये जो है ये तो यहां पर भी आ रहा है, राइट? मतलब इक्वेशन नंबर 2 का जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन का, वो इससे मिलता जुलता है. सिर्फ क्या साइन आ रहा है? माइनस. क्या मैं कह सकता हूं इतना जो है इसको मैं F21 के बराबर लिख सकता हूं, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 का यूज करते हैं तो 4 क्या बन जाती है? 4 बिकम्स f वेक्टर 12 इज इक्वल टू, ये जो है ये क्या है? f वेक्टर 21, दिस मच. f वेक्टर 21, लेकिन कौन सा साइन लगा है? माइनस. सो f वेक्टर 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f वेक्टर 21. इससे ये पता चल रहा है कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट. इसका मतलब Q1 चार्ज Q2 पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 चार्ज Q1 पर फोर्स लगाएगा. दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज. छोटा चार्ज बड़े चार्ज को जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स बड़ा चार्ज छोटे चार्ज को लगाएगा, क्योंकि फोर्स किसी एक चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है. प्रोडक्ट विल बी द सेम. 1 into 5 इज इक्वल टू 5 into 1. ठीक है. अगर एक 1 माइक्रोकूलम का है दूसरा 5 माइक्रोकूलम का है तो दोनों का प्रोडक्ट 5 ही आएगा, तो वो दोनों के लिए सेम आएगा. ठीक. इसीलिए फोर्सेस विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट. आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. तो यहां पर आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं इस इक्वेशन से? इक्वेशन नंबर, लेट अस टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 5. तो इक्वेशन नंबर 5 से आप ये बता सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे कर रही है. ठीक है. न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अगर आपको क्वेश्चन आता है प्रूव दैट कूलॉम्स लॉ इज इन कंसिस्टेंसी विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या इस टाइप का कोई सिमिलर क्वेश्चन आता है, तो आपको यही शो करना है. Newton's law is in consistency with the Newton's third law of motion. Sorry, Coulomb's law is in consistency with the Newton's third law of motion. ये आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं. दूसरा, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में Coulomb's law को एक्सप्रेस करना आए तो भी आप ये कर सकते हैं. ठीक है. अगर आपको आता है कि प्रूव दैट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है? सेंट्रल फोर्स क्या होता है? रिवाइज करा देता हूं. सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है. अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, दो ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो फोर्स लगता है दैट इज अ सेंट्रल फोर्स.
तो ये दोनों चार्जेस जो हैं, अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो भी इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगाएंगे, ठीक है, रिपेल कर रहे हैं, और अगर अट्रैक्ट करेंगे तो भी इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहां से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि सिंस the force between the charges acts along the line joining the two objects, therefore the force between the charges is a central force. तो आप सेंट्रल फोर्स भी प्रूव कर सकते हैं। तो इस डेरिवेशन को करने से तीन ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहे हैं। एक तो हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ लिखने वाले हैं जो हमने सीख लिया। दूसरा, हम इससे न्यूटन्स थर्ड लॉ की कंसिस्टेंसी बता सकते हैं। चौथा, हम ये बता सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये एक सेंट्रल, तीसरा हम ये फोर्स बता सकते हैं कि इट्स अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। चौथा भी है एक कि अगर आपको पूछा जाए कि प्रूव दैट इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो हम ये भी बता सकते हैं कि इट इज ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, सो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी आप यहां से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आई राइट इट, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर नोट्स लेना चाहेंगे तो इसी जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है इसी का एक स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को यहाँ पर रोककर आप अपना नोट्स लिख सकते हैं व्हेन यू स्टडी द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ एंड वील स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी तक तो हमने दो चार्ज लिए थे और उनके बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं ये सीखा था, F12 F21। लेकिन अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे। लेट अस कंसीडर ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। दिस इज Qn चार्ज, ठीक है। यहां पर एक और चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक। तो ये Q चार्ज जो रखा हुआ है इस पर Q1 भी फोर्स लगा रहा होगा, Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा, Q3 भी लगा रहा होगा, सारे चार्जेस इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो इस पर जो नेट फोर्स है वो कैसे मिलेगा, F इज इक्वल टू क्या होगा, इस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, Q पर Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसको हम मान लेते हैं F ड्यू टू 1, ठीक है। Q1 चार्ज के कारण जो फोर्स है इसको हमने F1 मान लिया। Q2 के चार्ज के कारण जो फोर्स है इसको हमने F2 मान लिया। Q3 के कारण जो फोर्स है इसको हमने F3 मान लिया एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो इन सभी फोर्सेस क्या क्या होना चाहिए, वेक्टर सम, यानी कि F वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस Fn वेक्टर। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं तो बहुत सारे चार्ज किसी भी एक चार्ज पर कितना फोर्स लगाएंगे, हर एक चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो हर एक चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका सम है। इसका मतलब एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के फोर्स को इफेक्ट नहीं कर रहा है, सब इंडिपेंडेंटली फोर्स लगा रहे हैं और नेट फोर्स उन सबका सम हो जाएगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। द फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ईच चार्ज, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करने के लिए आई हैव अ न्यूमेरिकल फॉर यू। Okay, I'll take a numerical like this.
फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q1। ठीक है, आपको नेट फोर्स निकालना है। सिचुएशन ये है, देयर आर 3 चार्जेस, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। ओके, 3 चार्जेस हैं। लेट अस टेक Q1 एज 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, Q2 एज 10 माइक्रोकूलम ले लेते हैं। चलो Q3 को -10 माइक्रोकूलम ले लेते हैं। ठीक है, 3 चार्जेस हो गए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस पर रखे हुए हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये वर्टाइसेस, ये जो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं, तीनों कॉर्नर्स पर 3 चार्जेस रखे हुए हैं, एक 5 माइक्रोकूलम का, एक 10 का और एक -10 का। ठीक है, आपको Q1 पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q1। हाउ विल यू फाइंड आउट? सिंपल, कैसे निकालेंगे? Q2 के कारण Q1 को जो फोर्स लग रहा है वो दोनों पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, दिस इज F1 वेक्टर। ठीक है, या F2 लिख लेते हैं, F2 वेक्टर। ठीक है, एंड Q3 जो है वो Q1 को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, दिस इज, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, दिस इज F3 वेक्टर, राइट। तो इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, F2 और F3, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो कैसे मिलेगा? बाय द पैरेललोग्राम लॉ। This is F, this is net force. Is that clear? Okay, तो कैसे निकालेंगे? What is F2? F2 क्या होना चाहिए? F2 vector is equal to क्या होना चाहिए? What is the formula for force between two charges? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। तो यहाँ पर ये Q1 है and this is Q2, Q1 Q2 and the distance is this 5 centimeter, इसका स्क्वायर करना है। तो what should be F2? Let us take it in the magnitude only. F2 is equal to 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू क्या है? 9 into 10 raised to 9। Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी है? 5। ठीक है, तो Q1 है 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10 raised to -6। ठीक है, और Q2 की वैल्यू क्या है? 10 माइक्रोकूलम। 10 into 10 raised to -6 अपॉन डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना? 5 सेंटीमीटर, यानी 0.05 मीटर, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। ठीक है, व्हेन वी सॉल्व इट व्हाट डू वी गेट? F2 इज इक्वल टू 9 5s are 45, 9 25, 10 of 50, 45, 0.25 square, 9, 10. It will come out to be 180 if I'm not wrong, right? चलो लिख लेते हैं, जो भी आए, this is F2, जो कुछ भी वैल्यू आए इसकी आप लोग निकाल लेना। ठीक है, now what should be F3? F3 जब हम निकालेंगे तो F3 का फॉर्मूला भी होगा 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। Q1 एज इट इज जो इसमें है वही रहेगा। Q1 Q3 जो है वो 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 10 था, सिर्फ प्लस की बजाय क्या लग रहा है? माइनस, जिसके कारण डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, अपॉन R स्क्वायर में जो डिस्टेंस है वो भी सेम है दोनों के बीच का, यहाँ 5 था तो यहाँ पर भी कितना है? 5 सेंटीमीटर ये। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी द सेम। तो हम F3 जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू F2 ही लिख सकते हैं। ठीक,
लेकिन जब आपको नेट फोर्स निकालना होगा तो F इज इक्वल टू क्या करोगे, इन दोनों का वेक्टर सम करोगे। वेक्टर सम के लिए क्या फॉर्मूला होगा, अंडर द रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ दीज वेक्टर्स। ठीक, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्रीज का होगा, इंटरनल एंगल 60 डिग्री के, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, और F2 और F3 बराबर है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अंडर द रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 को भी F2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2F2 स्क्वायर, 2F2 स्क्वायर प्लस 2F2 इंटू F3 मतलब F2 इंटू F2, 2F2 स्क्वायर cos 120 डिग्री। इसके आगे आप लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस आपको दे दिए जाएंगे और आपको नेट फोर्स किसी एक चार्ज पर लगने वाला निकालना है। ठीक है, तो आप वेक्टर के फॉर्मूले का यूज करके, वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके नेट फोर्स निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल के मुझे बताइएगा। ठीक है, यू कैन राइट ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, F2 निकाल के F3 और F2 बराबर रहेंगे, नेट फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट रहे तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से, अपने स्कूल के सब्जेक्ट टीचर से इस डाउट को क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको। The next topic is the concept of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस अंडरस्टैंड, ये कोई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, किसी भी चार्ज के अराउंड एक स्पेस का ऐसा रीजन होता है जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाए तो उसको अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स फील होने लगता है। उस रीजन ऑफ स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, दैट मींस इट्स फोर्स कैन बी फेल्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझने के लिए आप लोग सोचो, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड याद है कुछ? मैग्नेटिक फील्ड के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मैंने दो चॉक्स बनाई हैं लाइक दिस, I think you will be able to understand from this. Okay, ये चौक जो है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज अ मैग्नेट जिसका ये वाला पोल साउथ है और ये वाला पोल नॉर्थ है। ठीक है, दिस इज द साउथ। अब मैं कोई दूसरा मैग्नेट भी रखे हूं जो अभी स्क्रीन से बाहर है, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, मतलब कि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड एक रीजन है जो स्क्रीन से शो हो रहा है। आप इमेजिन कीजिए जहां पर इस मैग्नेट के आसपास कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो उसको फोर्स लगेगा, और अगर इस फील्ड से बाहर रहेगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो ये जो मैग्नेट है, ठीक, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट अभी दूर है तो इस पर फोर्स नहीं लग रहा है। ये मैग्नेट जैसे जैसे इसके पास आएगी, देखो ये आना शुरू हुई, अब फोर्स महसूस होना शुरू हो गया। साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको पास लाते जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ता चला जाएगा, और पास लाएंगे और ज़्यादा रिपल्शन, बहुत पास आने पर ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, दे विल रिपेल ईच अदर। ऐसा ही होता है ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो साउथ साउथ हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मैं नॉर्थ इसके पास लाता तो ये क्या करता, अट्रैक्ट करता। ठीक है, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट। लेकिन अगर ये बाहर है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, दूर रहेगा, अंदर आ गया पर दूर रहेगा तो फोर्स लगेगा। जैसे जैसे पास लाते चले जाएंगे फोर्स बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब किसी मैग्नेट के चारों ओर हर जगह पूरे स्पेस में एक ऐसी रीजन, एक ऐसी स्पेस होती है जहां पर इस मैग्नेट के कारण दूसरे मैग्नेट को फोर्स महसूस होता है। इस रीजन ऑफ स्पेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
अगर कोई मैग्नेट फील्ड से बाहर है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, फील्ड के अंदर आ जाएगा तो फोर्स लगेगा। इन द सेम वे कोई चार्ज के अराउंड भी एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस होता है जहां पर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उसको फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाहर अगर रहेगा वही तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये जो रीजन ऑफ स्पेस है इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझने वाली डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स फोर्स कैन बी फेल्ट, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। Anything which is outside the field, any charge, if it is outside the field, then the force experienced by it is zero. तो जहां पर फोर्स जीरो होता है यानी कि इस चार्ज की रेंज में ये नहीं है, रेंज से बाहर है। समथिंग विच इज आउटसाइड द रेंज इज टर्म्ड एज एट इंफिनिटी। तो एनीथिंग विच इज आउटसाइड द फील्ड इज अज्यूम्ड टू बी एट इंफिनिटी, ठीक है। तो इस चार्ज के लिए इस डिस्टेंस के बाद इंफिनिटी शुरू हो जाएगा, ठीक, आउटसाइड द फील्ड इंफिनिटी, ठीक। अब अगर हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन देनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट किया जाता है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल डेफिनेशन है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। नाउ आई हैव यूज्ड द टर्म टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। ये जो चार्ज है जिस पर हम फोर्स फील कराएंगे, ये चार्ज के कारण जो फोर्स फील होगा इस पर, इसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। और ये वाला चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज। दिस इज द टेस्ट चार्ज। इसको हम फील्ड के अंदर ले गए यहां पर, ये, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, टेस्ट चार्ज। अब आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज सोर्स चार्ज, जो फील्ड प्रोड्यूस करता है, व्हाट इज टेस्ट चार्ज, जिस पर फोर्स लगता है, दैट इज टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज को हम Q से डिनोट कर देते हैं, टेस्ट चार्ज को हम Q0 से डिनोट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट। व्हाट इज Q0? Q0 इज द टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो दैट इज द डेफिनेशन। व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स का यूनिट न्यूटन अपॉन चार्ज का यूनिट कूलॉम। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? न्यूटन पर कूलॉम। क्या इससे हमें फोर्स का भी फॉर्मूला मिल रहा है? What should be the force from this formula? It is equal to Q0 into E. तो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, उस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट फोर्स। यहां पर E जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बताओ यहां पर दूर में ज्यादा फोर्स लगेगा या पास में ज्यादा फोर्स लगेगा? चार्ज जब पास पास रहेंगे तब ज्यादा फोर्स लगेगा, चार्ज जब दूर दूर रहेंगे तब कम फोर्स लगेगा। इसका मतलब अगर फोर्स कम लग रहा है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। यहां पर कम फोर्स लग रहा है, वी विल से इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। यहां पर ज्यादा फोर्स लगेगा, वी विल से इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है मतलब स्ट्रेंथ कम है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलती है? फोर्स से। किसको लगने वाले फोर्स से? टेस्ट चार्ज को लगने वाले फोर्स से। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज को फोर्स लग रहा है उसको उसके टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चल जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय E वेक्टर, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड आउट ये फोर्स जो है इन दोनों चार्जेस के बीच में, अगर डिस्टेंस है r तो ये जो फोर्स है ये इस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q0, Q0 अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस इज r, Q0 upon r square. This is the force. ठीक है. So what should be electric field then? If this is the force, electric field क्या हो जाएगा? Therefore electric field is force experienced per unit test charge. यानी इसको अगर हम Q0 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 pi epsilon naught Q upon r square. That is the formula for electric field due to a single point charge. What is the formula for electric field due to a single point charge? 1/4 pi epsilon naught Q upon r square. ठीक है. क्या इस फॉर्मूले से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कितनी चीजों पर डिपेंड कर रही है? एक तो सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रही है, दूसरा किस पर डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पर,
और तीसरा किस पर डिपेंड कर रही है? परमिटिविटी पर। ठीक है, क्या ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? इस फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज नहीं आया क्योंकि टेस्ट चार्ज गेट्स कैंसिल्ड। फोर्स के फॉर्मूले में क्यू नॉट को डिवाइड कर दो, फोर्स के फॉर्मूले में क्यू नॉट को डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्मूला आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज नहीं है। It means that the electric field do not depend upon the test charge. It depends only on three things: source charge, distance and permittivity. It do not depend upon the test charge. ये बात ध्यान में रखना। फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस पर डिपेंड करता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर? ठीक, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट सोर्स चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई डायरेक्शन भी होना चाहिए। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम प्लस टू माइनस। दिस इज द डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम प्लस टू माइनस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से अवे जाएगी और टुवर्ड्स माइनस रहेगी। ठीक है, इसका मतलब अगर हम सिंगल प्लस चार्ज लेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही होगी, अगर हम माइनस चार्ज लेंगे तो उसमें अंदर की तरफ जा रही होगी। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो ये डेफिनेशन वाला फॉर्मूला सब लोगों को याद रखना है। ये डेफिनेशन फॉर्मूला है, ये सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए डिराइव्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दोनों याद रखना है। लेट अस रिवाइड इट इन द नटशेल। समझने वाली डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। और मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, और सिंगल सोर्स चार्ज है तो उसके कारण किसी भी पॉइंट पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 1/4πε0 Q/r², जिससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है, लेकिन टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज होगा तो भी यहाँ पर फील्ड रहेगी, और अगर टेस्ट चार्ज नहीं होगा तो भी यहाँ पर फील्ड तो रहेगी। राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज के होने ना होने से नहीं डिपेंड करती है। टेस्ट चार्ज होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नहीं होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? प्लस टू माइनस। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करती है, यानी कि बहुत सारे चार्जेस के कारण अगर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी रीजन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वो हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगी। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे हमने फोर्स का वेक्टर सम निकाल के नेट फोर्स निकाला, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स का भी वेक्टर सम निकाल के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करती है। ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस स्क्रीनशॉट, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपने नोट्स को बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास सिंस द टाइम इज शॉर्ट। इसके बाद की जो चीज़ें हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।